Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Tech English. Students, today I will discuss the first chapter from the book First Flight, that is A Letter to God. As you can see the title, it is unbelievable that one person is writing a letter to God. कहीं ना कहीं ये टाइटल जो है वो हमें किसी पर्सन का फेथ दिखा रहा है जो लेटर को राइट कर रहा है. So this story is all about the faith of a person. So in this lecture we will discuss about the author, title, characters, theme and story with all of you. So let's start. So now we will discuss about the writer. The writer of this story is Gregorio Lopez y Fuentes. He was born on 1897 and he was died on 1966. He belonged to Mexico and he was a novelist, poet and a journalist too. He was one of the leading chronicles of the Mexican Revolution. मतलब मैक्सिकन रिवोल्यूशन में भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया. And he was awarded the National Prize of Arts and Sciences in 1935 और इन्हें 1935 में National Prize of Art and Science भी मिला. So this is an image of the author. Now we will discuss about the theme of the story because it is very important to know the theme to understand the chapter. So there is a line about the faith that faith is like Wi-Fi. It is invisible but it has the power to connect you to what you need. तो फेथ जो है इट इज़ जस्ट लाइक वाईफाई. ये आपको दिखता नहीं है लेकिन तब भी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उससे आपको जोड़े रखता है. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट हार्ड लाइफ एंड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड ऑफ ए पुअर फार्मर नेमिंग लेंचो. ही हैड लॉस्ट हिज क्रॉप ड्यू टू हैवी रेन्स एंड हेल स्टोन्स. और जो क्रॉप थी वो उसकी इनकम का एकमात्र सोर्स थी. He firmly believed that God would not let him and his family die of hunger. और उसे पूरा भरोसा था कि गॉड उसे ऐसी सिचुएशन में नहीं छोड़ेंगे. He wrote a letter to God seeking help from the Almighty. और इसी उम्मीद में कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे उसने गॉड को एक लेटर लिखा. To see the letter, some kind employees of the poor office were moved. They were impressed to see his faith in God and they helped him with money anonymously. Anonymously मतलब without mentioning their real name. They help in the name of God. So this story tells us to have faith in God and this story tells us that we should never lose hope in the adverse situation. ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि हमें adverse situation में कभी भी hope नहीं खोना चाहिए. So now we will discuss about the characters. The main character is Lencho, who is a farmer. The second character is postmaster and the third characters are the employees of the post office. They are also important. Now we will discuss the story. So there was a house that was situated on the top of a low-heighted hill. Low-heighted hill मतलब ऐसी हिल जिसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है. और वो घर उस टॉप पे ओनली हाउस था. मतलब उसके अलावा उस टॉप पे उस हिल पे कोई और हाउस नहीं था. और उसी घर में लेंचो नाम का एक पुअर फार्मर रहता है. उस हिल की ऊंचाई से कोई भी रिवर को भी देख सकता था और क्रॉप को भी देख सकता था जो ऑलमोस्ट राइप हो चुकी थी. वो क्रॉप किसकी थी? वो फील्ड्स जो थे वो लेंचो के थे. लेंचो को ये पूरा भरोसा था कि उसकी हार्वेस्ट बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करेगी लेकिन उसे बस एक चीज़ का इंतज़ार था और वो था अच्छी बारिश. क्योंकि अच्छी बारिश होगी तो उसकी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग अच्छी होगी और इससे वो अपनी फैमिली के लिए मनी अर्न कर सकता है. बिकॉज his crops were the only source of income for him and his family. So that's why he was awaiting for the rainfall and he was looking at the northeast direction in the hope of the rainfall. वो सुबह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसी साइड से बारिश होगी. और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखते हुए अपनी वाइफ से कहता है कि आज बारिश होने की उम्मीद है. उसकी वाइफ उस समय खाना बना रही थी तो
कुकिंग करते वक्त वो कहती हैं यस गॉड विलिंग। गॉड विलिंग मतलब यस अगर भगवान ने चाहा तो। जैसे हम लोग भी कहते हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसे ही उसकी वाइफ ने भी कहा। तो लेंचो अपने फील्ड के पास खड़ा था, वो देख रहा था और उसके एल्डर चिल्ड्रन जो हैं दे वर वर्किंग इन द फील्ड एंड उसके जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास हाउस के पास काम कर रहे थे। तभी लेंचो की वाइफ ने सबको खाने के लिए बुला लिया। तो जब डिनर का टाइम था, जब वो लोग डिनर कर रहे थे, जैसा कि लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था उसी वक्त बारिश होने लगती है और जिसकी वजह से लेंचो काफ़ी खुश हो जाता है। उसे ये उम्मीद हो जाती है कि उसने जो भी प्लानिंग की है वो फुलफ़िल हो जाएगी। और उस समय विंड बहुत प्लीजेंट थी और कोई भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से क्लाउड्स को अप्रोच करते हुए देख सकता था। वो देख सकता था कि नॉर्थ ईस्ट साइड से क्लाउड्स आ रहे हैं। लेंचो काफ़ी खुश था। ही वेंट आउट ऑफ द हाउस। वो अपने घर से बाहर गया ताकि वो रेन की ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पे फील कर सके और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, एज यू कैन सी। So when he went out and felt the drops of water on his body, he compared it with the coins. और उसने बड़ी बूंदों को कंपेयर किया 10 सेंट से और छोटी बूंदों को कंपेयर किया 5 सेंट से। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स है उसकी वजह से हार्वेस्ट अच्छी होगी और जिसकी वजह से उसे मनी मिलेगा। दैट्स वाई ही कंपेयर्ड इट विद द कॉइन्स। तो वो काफ़ी खुश था और देख रहा था बारिश को। वो अपने फील्ड्स को देख रहा था कि उसका फील्ड जो है वो बारिश से पूरा कवर है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश का एक कर्टेन है जिसने उसके फील्ड्स को कवर कर दिया। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। वाई? अचानक से काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी और हवा के साथ साथ हेल स्टॉर्म भी आ गए। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी काफ़ी तेज़ बारिश होती है और उसी के साथ साथ हेल स्टॉर्म भी गिरने लगते हैं, तो वैसा ही लेंचो के साथ भी हुआ, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। द राइटर satirically comments that these hailstorms were frozen rain and they were just like the new silver coins. फ्रोज़न रेन यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि हेल स्टॉर्म को देख के ऐसा लगता है कि जैसे बारिश की बूंदें हैं वो जम गई हैं और उसे राइटर ने न्यू सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया है सैटिरिकली, क्योंकि यहाँ पे उसने इस बात पे कमेंट किया है। और जो छोटे बच्चे थे वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने घर से बाहर निकलते हैं ताकि वो रेन को एंजॉय कर सके और वो हेल स्टोन्स को कलेक्ट भी करने जाते हैं। हेल स्टोन्स बिल्कुल फ्रोज़न पर्ल्स की तरह लग रहे थे। पर्ल्स आपने देखा होगा, पर्ल्स भी वाइट होते हैं और हार्ड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हेल स्टॉर्म भी वाइट होते हैं और हार्ड होते हैं। लेकिन लेंचो काफ़ी परेशान था और वो ये उम्मीद कर रहा था कि बैड वेदर जो है वो जल्दी ख़त्म हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 1 आवर तक हेल स्टॉर्म गिरता रहा और इसकी वजह से हेल स्टॉर्म ने पूरी वैली को कवर कर दिया, या इवन उसका हाउस, उसका गार्डन, उसकी हिल साइड, इवन उसका जो कॉर्न फील्ड है, उसकी जो फसल है वो पूरी हेल स्टॉर्म से ढक गई। और जिसकी वजह से सब कुछ इतना वाइट लग रहा था, जैसे लग रहा था कि सब चीज़ को वाइट सॉल्ट की लेयर से कवर कर दिया गया हो। जब हेल स्टॉर्म बंद हुआ तो ट्रीज की पत्तियां गिर गई थी और कॉर्न जो थी, जो फसल थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जो कॉर्न्स के फ्लावर थे, जैसे फसल में फ्लावर होते हैं, वो सारे पौधों से गिर चुके थे। लेंचो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया, काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया, क्योंकि उसकी क्रॉप जो थी वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी और जो भी उसका प्लान था वो सब कुछ जस्ट अपोजिट हो गया। क्योंकि उसने ये प्लान किया था कि बारिश अच्छी होगी, हार्वेस्ट अच्छी होगी, लेकिन बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म भी होने लगे, जिसकी वजह से उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई। और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था सर्वाइवल के लिए। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो अपनी फैमिली को फीड कर सके। अब वो अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तो वो अपने फील्ड्स को देख रहा था। फील्ड्स को देखते हुए वो अपने चिल्ड्रन से कहता है कि इससे ज़्यादा फसल तो प्लेग ऑफ लोकस्ट में बच जाती है। प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या है? एज यू नो, these are the insects just like the grasshopper, they attack the crops and they destroy the crops. ये grasshopper के स्पीसीज के इंसेक्ट्स होते हैं और ये पूरी फसल पे
अटैक करते हैं एक साथ काफ़ी सारे ग्रुप में, और उसके बाद फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो ये एक प्लेग की तरह है। जैसे प्लेग एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और जब वो फैलता है तो काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है, और जिस जगह वो बीमारी फैलती है वहाँ पे कोई भी नहीं बचता। उसी तरह ये प्लेग ऑफ लोकस्ट है, जब ये अटैक करते हैं तो कोई भी फसल नहीं बचती है। तो इसीलिए लेंचो काफ़ी दुखी था और अपना दुख जाहिर करते हुए ये कहता है कि इससे ज़्यादा फसल तो प्लेग ऑफ लोकस्ट में बच जाती है। अब वो काफ़ी परेशान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उसका पूरा हार्डवर्क बेकार चला गया था। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और उसे अब ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे स्टार्वेशन के सिचुएशन का सामना करना पड़े। लेंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड द राइटर कंपेयर्ड हिम विद एन ऑक्स। क्या बोलते हैं राइटर? दैट लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ये एक मेटाफर है। इट मीन्स दैट लेंचो वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, और वो काफ़ी सालों से फील्ड्स पे काम कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसे लिखना पढ़ना आता था। सो नेक्स्ट डे, जो कि संडे मॉर्निंग था, उसने डिसाइड किया कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा और खुद जाके वो मेल करेगा। सो लेंचो ने अब गॉड को लेटर लिखना स्टार्ट किया, और उसने लेटर में क्या लिखा? उसने अपनी सिचुएशन के बारे में बताया कि उसकी सिचुएशन इस समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और उसने ये भी बताया कि उसे गॉड से 100 पैसोज़ की हेल्प चाहिए। उसने ये भी कहा कि अगर उसे 100 पैसोज़ नहीं मिले तो उसकी फैमिली भूखे मर जाएगी। तो उसने ये भी बताया कि उसे 100 पैसोज़ की इसलिए भी ज़रूरत है ताकि वो क्रॉप्स को दोबारा से ग्रो कर सके, और जब तक हार्वेस्ट के लिए क्रॉप्स तैयार नहीं हो जाती तब तक उसे सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए मनी की ज़रूरत है। एनवेलप के ऊपर उसने टू गॉड लिखा और लेटर को एनवेलप में रख के वो टाउन चला गया। पोस्ट ऑफिस में जब वो गया तो उसने एनवेलप के ऊपर स्टैंपिंग की और उसके बाद वो लेटर को मेल कर दिया, मतलब उस मेल में जो मेल बॉक्स होता है उसमें डाल देता है। जैसे ही उसका लेटर एक एम्प्लॉय को मिलता है, एक पोस्टमैन को मिलता है, वो काफ़ी हंसने लगता है और हंसते हंसते वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है। बाय फिजिक पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट पर्सन, लेकिन बाय नेचर वो काफ़ी फ्रेंडली था। जब वो देखता है लेंचो का लेटर तो उसने टू गॉड देखा तो वो भी काफ़ी हंसने लगता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ टाइम में ये एड्रेस कभी नहीं देखा। लेकिन कुछ समय बाद वो सीरियस हो जाता है। वाई ही बिकम सीरियस? बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड टू सी द फेथ ऑन गॉड बाय द राइटर ऑफ द लेटर। क्योंकि वो ये सोचता है कि जिसने ये लेटर लिखा उसका गॉड में कितना ज़्यादा फेथ है। जब उसे ये रियलाइज़ होता है तो वो काफ़ी सीरियस हो जाता है और वो ये विश करता है कि काश उसके अंदर भी गॉड के लिए इतना फेथ होता। सो अब वो डिसाइड करता है कि वो इस राइटर की हेल्प करेगा। उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड राइटर को रिप्लाई करेगा, लेकिन रिप्लाई करने के लिए लेटर को पढ़ना ज़रूरी था। तो उसने अच्छे इंटेंशंस के साथ लेटर को ओपन किया और रीड करने लगा। When he read the letter, he got to know that to reply the letter, he needed something else more than pen, paper and well wishes. उसे क्या समझ में आया कि उसे लेटर का रिप्लाई करने के लिए, लेटर को आंसर करने के लिए उसे पेन, पेपर और वेल विशेस के अलावा भी कुछ चीज़ की ज़रूरत है। Because the writer of the letter had demanded for 100 pesos. लेकिन राइटर की इस डिमांड को देख के भी पोस्टमास्टर का रेजोल्यूशन अडिग था। उसने ये डिसाइड किया कि वो उसकी हेल्प करेगा, और हेल्प करने के लिए उसने अपने कॉलीग से हेल्प ली, अपने फ्रेंड से हेल्प ली, और इवन अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी उसने कंट्रीब्यूट किया टू हेल्प लेंचो। तो उसने क्या कहा, सभी से एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी की तरह उसने सभी लोगों से मनी कलेक्ट किया ताकि वो लेंचो को गॉड की तरफ से मनी सेंड कर सके। लेकिन काफ़ी एफर्ट के बाद भी वो 100 पैसोस नहीं कलेक्ट कर पाया, वो केवल 70 पैसोस ही कलेक्ट कर पाया। जब उसने मनी कलेक्ट कर लिया सभी से तो उसने मनी को एक एनवेलप में रखा और लेंचो का एड्रेस लिख दिया, और उसके अंदर एक लेटर भी लिखा जिसमें उसने लिखा गॉड।
उसने गॉड के नाम पे साइन क्यों किया? ताकि वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सके, और वो ये भी चाहता था कि लेंचो यही समझे कि ये रिप्लाई गॉड ने लिखा है। नेक्स्ट डे लेंचो समय से पहले ही आ जाता है क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड था गॉड के रिप्लाई के लिए। पोस्टमैन जिसने कि वो लेटर रिसीव किया था, जैसे कि मैंने अर्लियर आपको बताया है कि जब पोस्टमैन वो लेटर को देखता है तो पोस्ट मास्टर को दिखाने जाता है। तो यहाँ पे जिसने वो लेटर रिसीव किया था वही पर्सन लेंचो को गॉड का रिप्लाई देखता है, और वो ये उम्मीद कर रहा था कि लेंचो काफ़ी खुश होगा और काफ़ी सरप्राइज भी होगा। और उसी जगह पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से लेंचो को देख रहा था और वो काफ़ी सेटिस्फाइड था, काफ़ी खुश था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसने किसी पर्सन की हेल्प करी है, किसी नीडी की हेल्प करी है। लेकिन लेंचो को गॉड में इतना ज़्यादा फेथ था कि उसे गॉड का रिप्लाई देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ, बल्कि वो गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया जब उसने मनी काउंट किया और उसे ये पता चला कि मनी तो कम है। जब उसने काउंट किया तो उसे 70 पैसोस मिले, जबकि उसने डिमांड की थी 100 पैसोस की। उसे ये यकीन था कि गॉड इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते, ना ही वो अपने डिवोटी की रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं। तो ये सारा जो इंसिडेंट है, लेंचो का लेटर लिखने से लेके लेटर रिसीव करने तक, उसके गुस्सा होना, ये सब हमें कहीं ना कहीं दिखाता है कि लेंचो काफ़ी नेव है, काफ़ी वो इनोसेंट है और गॉड में उसे बहुत ज़्यादा फेथ है। उसे इतना ज़्यादा गॉड में फेथ है कि वो ये भी नहीं सोच रहा कि गॉड का एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस है अर्थ अर्थ में या नहीं। और जब उसने लेटर रिसीव किया तो इवन उसने सेंडर के बारे में भी जानना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे पूरा फेथ था कि ज़रूर गॉड ने ही इस लेटर का रिप्लाई भेजा है। तो जब उसने ये देखा कि मनी कम है तो काफ़ी वो गुस्सा हो गया और वो गॉड को दोबारा से एक लेटर लिखने लगता है। तो वो विंडो से इंक और पेपर कलेक्ट करता है और गॉड को लेटर लिखता है। जैसे ही उसका लेटर कंप्लीट हो जाता है वो इसमें स्टैंपिंग करता है और वो मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। पोस्ट मास्टर जो कि ये सब देख रहा था, उसकी रिएक्शन देख रहा था, उसकी लेटर राइटिंग देख रहा था, तो जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गया उसने तुरंत निकाला ये देखने के लिए कि एक्चुअली में लेंचो ने क्या लिखा है। तो लेंचो ने खुश होने की बजाय ये कंप्लेन की थी कि उसे केवल 70 पैसोस मिले हैं, और उसने ये कहा कि उसे वाकई में जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो 30 पैसोस है, उसी नीड है। उसने ये भी सजेस्ट किया कि मनी बाय पोस्ट ना भेजा जाए। वाई? बिकॉज उसे पोस्ट ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स पे शक है, उसे उनकी ऑनेस्टी पे शक है, और उसे ये डाउट है कि कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही वो मनी स्टील किया है, वो मनी टेक आउट कर लिया है, और क्या उनको कहता है, बंच ऑफ क्रूक्स। तो इस इंसिडेंट से आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि पोस्ट मास्टर की क्या रिएक्शन हो गई। ये स्टोरी में नहीं लिखा है क्योंकि इस इंसिडेंट के साथ ही, इस पॉइंट के साथ ही स्टोरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम इस चीज़ को खुद इमेजिन कर सकते हैं कि पोस्ट मास्टर की क्या रिएक्शन रही होगी जब उसने लेटर पढ़ा। ही वुड बी क्वाइटली सरप्राइज एंड शॉक्ड ऑल्सो, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि लेंचो काफ़ी खुश होगा, उसने उसकी हेल्प करी किसी तरह, लेकिन यहाँ लेंचो खुश होने के बजाय उन्हें ही अ बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा है। तो ये सारा इंसिडेंट हमें ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आयरनी है। आयरनी क्या है? कहीं ना कहीं राइटर एक व्यंग कर रहा है कि जिन लोगों ने लेंचो की हेल्प करी, लेंचो उन्हीं की ऑनेस्टी पे शक कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो काफ़ी अनग्रेटफुल भी है, क्योंकि उसे 70 पैसोस देख के एटलीस्ट खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश होने की बजाय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है और कंप्लेन भी कर रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर हुई होगी। इसमें कई सारे मैसेज हैं, जैसे कि लेंचो के बारे में है, लेंचो के कैरेक्टर के बारे में, पोस्ट मास्टर के बारे में है, तो वो सब मैंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन आंसर के जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने डिस्कस किया है। सो आई होप आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। नाउ आई विल डिस्कस द यूज़ ऑफ मेटाफर इन द टेक्स्ट।
मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज सो लाइक। तो यहाँ पे कई जगह राइटर ने मेटाफर का यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल ही कंपेयर क्लाउड विद द ह्यूज माउंटेन्स। उसने एक वर्ड यूज़ किया है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। तो यहाँ पे क्लाउड को उसने माउंटेन से कंपेयर किया है और किस क्वालिटी को कंपेयर किया है? द मॉस और द ह्यूजनेस ऑफ द माउंटेन्स। तो जो क्लाउड से वो इतने बड़े थे, इतने बिग थे कि दे वर लुकिंग लाइक द माउंटेन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया है न्यू कॉइन्स से। तो न्यू कॉइन्स से कंपेयर करने के दो रीज़न थे। एक तो ये कि रेन ड्रॉप्स की वजह से हार्वेस्टिंग अच्छी होगी और उसको मनी मिलेगा, और दूसरा ऐसा लग रहा था कि जो फील्ड है उसका वो रेन ड्रॉप से कवर है जस्ट लाइक अ कर्टेन। थर्ड पॉइंट इज हेल स्टोन्स। हेल स्टोन को वो न्यू सिल्वर कॉइन और फ्रोजन पर्ल से कंपेयर करता है, क्योंकि हेल स्टोन बिल्कुल पर्ल की तरह दिख रहा था, वो वाइट था और फ्रोजन था। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकस्ट। राइटर वर्ड यूज करता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग क्या होता है? एक एपिडेमिक होता है, एक बीमारी होती है जो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड होती है और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। इसी तरह जो लोकस्ट है जब वो अटैक करते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और कुछ भी नहीं बचता। लास्ट पॉइंट इज लेंचो। लेंचो के बारे में एक लाइन बोली गई है। लेंचो के बारे में एक वर्ड बोला गया है एन ऑक्स ऑफ ए मैन। तो यहाँ पे लेंचो का जो हार्ड वर्क है उसके बारे में बोला गया है दैट ही वर्क लाइक एन ऑक्स। ऑक्स भी बहुत हार्ड वर्क करता है, तो उसी तरह लेंचो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी हार्ड वर्क करता है अपने फील्ड्स में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूज ऑफ मेटाफर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। नाउ एट लास्ट वी विल सी द राइटर्स मैसेज। जैसे कि आप इस स्टोरी में देख सकते हैं, लेंचो का गॉड में फेथ भी दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि लेंचो का गॉड में तो फेथ है लेकिन वो ह्यूमन बींग्स में फेथ नहीं करता। तो उससे रिलेटेड ही राइटर ने मैसेज दिया है। सो इन दिस स्टोरी द राइटर इलस्ट्रेट्स टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या कॉन्फ्लिक्ट है? वन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड सेकेंड बिटवीन एमंग ह्यूमन देमसेल्फ। तो एक तो है ह्यूमन और नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और एक है ह्यूमन के बीच में ही। जैसे कि स्टोरी में हमने क्या देखा था, इन द स्टार्टिंग वी सॉ दैट लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग फॉर ए रेन शावर फॉर ए गुड हार्वेस्ट। लेकिन जब एक्चुअली में बारिश होने लगती है वो काफ़ी खुश होता है ये सोच के कि उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट वॉट हैपेंड? उसकी हैप्पीनेस ज़्यादा देर तक नहीं रही। हिज जॉय इज टर्न्ड इनटू सॉरो। उसकी जो खुशी है वो सॉरो में बदल जाती है, डिस्पेयर में कन्वर्ट हो जाती है जब हवा काफ़ी तेज़ हो जाती है और हवा के साथ साथ हेल स्टॉर्म भी गिरने लगते हैं। ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं शो करता है कि मैन और नेचर के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जैसा हम चाहें, जैसा ह्यूमन बींग्स चाहे वैसा ही नेचर इनैक्ट करे। कई बार क्या होता है कि हम उम्मीद कुछ और करते हैं और नेचर कुछ और एक्ट करती है, मतलब हमारी उम्मीद के जस्ट अपोजिट नेचर एक्ट करती है, जैसा कि इस स्टोरी में लेंचो के साथ हुआ। सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ह्यूमन के बीच में। तो सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब लेंचो को गॉड का रिप्लाई मिलता है, वो मनी काउंट करता है और उसे मनी कम मिलता है तो वो क्या कहता है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक्स कहता है और वो ये भी कहता है कि इन्होंने ही पैसे निकाल लिए, इन्होंने ही मनी विड्रॉ कर लिया है। वो क्या कहता है कि इन्होंने ही मनी को टेक आउट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी ऑनेस्टी पे शक करता है और उन लोगों पे वो शक करता है जिन्होंने उसकी खुद हेल्प करी है। एनोनिमसली मीन्स सीक्रेटली विदाउट मेंशनिंग देयर नेम। तो कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि ह्यूमन के बीच में आज बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। हम आज गॉड पे तो ट्रस्ट कर सकते हैं, हम आज गॉड पे तो फेथ करने को तैयार है, लेकिन हम आज एक दूसरे पे, ह्यूमन बीइंग्स पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं राइटर इस स्टोरी के थ्रू एक यही मैसेज देना चाहते हैं। सो विद दिस मैसेज माई लेक्चर इज़ ओवर। आई होप दैट यू हैव रियली लाइक दिस वीडियो और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। नोट्स मेकिंग भी आप कर सकते हैं
और आपको वो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे फॉर समरी, फॉर थीम, फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो जो भी नए व्यूवर हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।